I think this is very much important to all of us. First, I would like to ask you, what do you infer from classroom management? What is in your mind? Anybody? What do you understand by classroom management? First of all, discipline. Okay, sitting arrangement, sitting arrangement, working of all audio, video, and the all equipment. working of all teaching learning tools which are available in the classroom, whether it can be a projector or it can be a whiteboard, What else? and environment, Environment. What else? exciting the student to learn about the topic. Okay. It is rather motivating the students. Okay. So we are revolving around all these things, what you have told me, step by step in a proper manner. So the first question comes, why this topic to all of us? This is because today, if we see the today's scenario, this large scale expansion in technical education, number of polytechnics, number of engineering colleges, number of universities have come up, resulting large number of students are entering these institutions, and the class size has been increased, say to double the size. Means earlier there used to be, from starting it was 15, then 20, then 30, then 60. Now it is somewhere 120 persons of students in one class. And there is a heterogeneity among the students. And because of the heterogeneity and the age is adolescent, and there are number of factors which are affecting, as we told you again for yesterday, that there is individual differences among the learners also, and the motivation. And in addition, there is a motivation level of different students, their behavior, and but our aim is to impart education, the overall development of a student, resulting bring out desirable change in the behavior of a particular student. And the role of teacher becomes a facilitator. Earlier we used to say that we are a teacher, we were having authority. Nowadays we are just like facilitators, and we are called educators. We are caring the students and try that they learn as per the requirement. So while teaching, it is a must that we must know the learning styles of the students. Accordingly, we will be adopting teaching techniques and methodologies. The aim of teaching learning process is to increase or enhance or ensure learning to take place. For this, we have to focus towards classroom management, classroom activities. So it is also important for the teachers who are good at teaching, they enjoy teaching and managing classrooms. And on the other side, for the new teachers, it becomes a problem. So that is a great concern for the beginning teachers. The problem of CRM is because anxiety, apprehensions, and force them to leave the teaching profession. This is also another factor. And there are various strategies for classroom management we'll be talking about. So I have compiled some slides for you. Our objective is the need and importance of effective classroom management.
यदि ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाया और चले गए. But aim is to facilitate or to enhance learning of students. The key factors to effective classroom management: how to manage rules and procedures, how to handle discipline problems. So we'll be discussing in this very session basic concepts with respect to classroom management, defining effective classroom management, factors for effective classroom management, relationship between effective teaching and classroom management, teacher classroom management styles. Now there are styles of the teachers we'll be discussing, then we will conclude. So what is classroom management? Somebody of you has told that it is discipline. It's okay. What else? It is motivating your students. Again, you told it is providing safe and comfortable learning environment. It is building your students' self-esteem. It is being creative and imaginative in daily lessons. So why classroom management? It gives satisfaction and enjoyment in teaching, which is dependent upon leading students' cooperation. How one gets cooperation from the students. Classroom management issues are of highest concern to the beginning teachers. So what is the precise definition of classroom management? Classroom management is all the things a teacher does to organize students, space, time, materials so that students' learning can take place. Related terms: deviance, discipline, and the third one is classroom management. These are the related terms to classroom management. We'll see what is deviance. Deviance behavior refers to aberrant or non-conforming acts. We have set certain rules for a particular college, as we see in our schools, that once the students are sent to the particular school, we get a brochure. In that, there are number of pages with information written, discipline, rules, what they will be accepting, what not, dress code, fees, timings of fees, timings of the school, holidays, or the schedule of the whole session. So we have to see that the student devious behavior refers to non-conforming acts which are set by the organization and which are not being conformed. It is relatively concept imbued with value judgment. We have to see that these are related terms about the value and their behavior. This behavior causes physical and psychological harm to a person. If these are not taken care, there will be problems psychologically and physically to a person. Violates established rules and disrupt their own and students' learning. If there is a disruption in the classroom, proper teaching will not be, or effective teaching will not take place, resulting there will be less learning, and it will be problem for a particular person who is doing this and for the other students also. Discipline, enforcement of order and control. Every organization has certain set of discipline, जिसको code of conduct भी बोलते हो, rules and regulations. It is relatively a narrow concept. It is also an expression of personal influence or a demonstration of legitimate rule-based authority. Rules which can be implementable. These are not only writing the rules. Then comes CRM. CRM means classroom management. Classroom management is a relatively broader concept and refers to combined attributes of discipline, instructional efficiency. The rules implies that discipline needs to be integrated with instructional and organizational competence skills. So these are related to instructional as well as organizational competence. The classroom management is not same for all because it differs from person to person, the teaching styles of the teacher, personality of a person, attitudes of a person, student population. Not all management strategies are effective for every teacher.
कोई इसके लिए कुछ सेट रूल्स नहीं है कि जो सभी को एक तरीके से फॉलो करने हैं. इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन, हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स एंड टीचिंग स्टाइल्स. Factors leading to discipline problem. So there are a number of factors which are responsible for discipline. The first one is gap in the lesson. There can be a bad planning. An activity loses momentum if it is not a proper plan. A piece of equipment fails to work. Suppose somebody is demonstrating and the equipment fails or the instrument is not working, then there is a gap. Unclear instruction. The students are not understanding what they are observing or what they are doing. They don't know what to do. Unable to start and attention wanders. मतलब कि उनकी attention जो है वो बिखर जाती है. Overexcited students arrive from another classes in disorderly mood. कई बार क्या होता है कि एक क्लास एक पर्टिकुलर रूम में लगती है और दूसरी क्लास किसी दूसरी प्लेस पे. So while moving from first position to next class, they are coming rushing and making noise, and as resulting their mood is disordered and the state of their mind is overexcited, and we see that we put lot of effort to make them quiet. Lack of teacher attention. We have to see that they are attending to the teacher. What is happening, especially in large groups? Suppose you are teaching a class and the class is having 75 students. You can well imagine, you can have eye contact with a few, but other people are making mistakes or problems. Too easy or too challenging. Sometimes topic is or the experiment is too easy or too challenging. That's why the students give up their attention. So they are not taking interest. Behavior expectation for guiding principles. So I had 4 questions in my mind. What behaviors do I expect from my students? So it is common for every teacher. What behavior do I expect from my students? How can I convey that to my students? My expectation is there, but how I convey these to my students? That I will be expecting this from you, I will not tolerate this, I will be very punctual. All these, there are many, there can be a list of behaviors or expectations. What do I do when a student misbehaves and breaks the rule? यदि कोई student misbehave करता है, then what is my action or my role? Should I punish him? Should I warn him? Should I persuade him? Or should I take him to the director or expel him? There can be so many factors or so many incidents. So it depends how I take care. Will I have hierarchy of consequences to deal with mild, moderate and severe misbehavior? Misbehavior of number of types. It can be a mild one, moderate one, which can be tolerated, and there can be severe misbehavior which cannot be tolerated. Principles for successful classroom management. Deal with disruptive behaviors but also manage to minimize off-task, non-disruptive behaviors. So we have to be very careful. We have to maintain. That is the first one. Teach students to manage their own behavior. Students को बताया जाएगा. Students learn to be on task and engaged in learning activities you have planned for them. If we are well planned, certainly we can involve them in certain activities and they are occupied and they will not do any mischief. Physical environment. Things to consider. क्या देखना चाहिए? Management of space should be conducive to learning. ये ना हो कि क्लास का साइज तो बड़ा हो और स्पेस बैठने के लिए कम हो. जब वो इकट्ठे बैठेंगे कोई ना कोई शरारत करेगा. If there is a proper space, proper sitting arrangement, there will be less problems. The physical environment of the classroom should support
the task that has to be carried out. मान लीजिए कि आपने कोई एक्टिविटी करवानी है और स्पेस बहुत लिमिटेड है, then the activity will not take place. That we have to take care. How will the students be working? तो उनकी वर्किंग के लिए we should have a proper space. और क्या वो अकेले काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे या in pairs? So desk should be arranged accordingly. Suppose there can be some incident, there can be a different type of activity. We can arrange the desk accordingly. Classroom climate. Setting the classroom climate is the key. It's about creating the environment. As I told day before yesterday also, we require conducive environment in which the learning is to take place, where people treat each other with courtesy and respect. That is the requirement. Where students follow rules not out of fear, but because they feel ownership for them, means belongingness. Where the teacher's goal is not so much to control students' behavior, but to create opportunities for the students to develop and exercise control over their own behavior. It should be automatic. ये नहीं कि जो टीचर है उनको सारा दिन कंट्रोल करने पे लगा दे, तो टीचिंग कैसे होगी और लर्निंग will not take place. So techniques for better classroom control. There are different techniques available. Focus attention on entire class. ये नहीं है कि हम जैसे क्लास में आए तो हम क्या करेंगे, जो फ्रंट लाइन के स्टूडेंट बैठे हैं हम उनकी ओर ही देखते हैं और जैसे उनको ही पढ़ा रहे होते हैं, या लेफ्ट साइड में कोई एक स्टूडेंट बैठा है जो हमारा जानकार है या जिससे हमारी इक्वेशन है, हम उसी को ही देखते हैं, हम उसी से ही सॉल्व जॉब करते हैं. डोंट टॉक ओवर स्टूडेंट चैटर. जब स्टूडेंट बातें कर रहे हैं तो हमें उनको चेक करना है. कैसे? साइलेंस कैन बी इफेक्टिव. चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए तो वो देखेंगे कि समथिंग हैज हैपेंड. यूज सॉफ्टर वॉइस सो दैट स्टूडेंट्स रियली हैव टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. यदि स्टूडेंट भी ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, आप भी उनको ऊंचा ऊंचा चुप करवा रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा? नोबडी इज लिसनिंग टू एनीबॉडी. पहले तो साइलेंट हो जाइए, फिर इतनी लिमिटेड आवाज में बोलिए कि स्टूडेंट्स अगेन रिमेन टोटली साइलेंट टू हियर व्हाट यू आर टॉकिंग. डायरेक्ट योर इंस्ट्रक्शन सो दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो आपने क्यूरियोसिटी अराउज करनी है कि दे आर रेडी टू ऑब्जर्व यू दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टीच देम और व्हाट इज गोइंग टू हैपन. मॉनिटर ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू चेक प्रोग्रेस. तो हमें ये दिखता है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स में बैठते हैं, एक ही थिंकिंग के लोग, शरारती लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे, जो जीनियस हैं पढ़ने वाले वो अलग बैठ जाएंगे. तो वी हैव टू मॉनिटर द ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड चेक देयर प्रोग्रेस. मूव अराउंड द रूम एंड सो द स्टूडेंट्स हैव टू पे अटेंशन मोर रेडिली. तो क्लास में हम एक जगह पे खड़े नहीं होना, वी हैव टू रोम अबाउट. तो हमारी क्लासरूम सेटिंग इस तरीके की होनी चाहिए. देयर शुड बी सम डिवीजन between the desks so that we may move on. Give students non-verbal clues. तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट शरारत करने वाला है या कर रहा है तो हम उसको नॉन-वर्बल क्लूज दे देते हैं, आंख के इशारे से, हाथ के इशारे से या किसी सिर के नॉड से, so that he doesn't do it again. Engage in low profile intervention of disruptions. तो जब कभी डिसरप्शन हो जाए तो उसको इतना विगरसली नहीं लेना, सो दैट की द होल क्लास इज डिसरप्टेड. मेक श्योर क्लासरूम इज कंफर्टेबल एंड सेफ. और ये भी देखना है कि वहाँ पे कोई हुड़दंग ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड द क्लास इज इन सेफ पोजीशन. ओवर प्लान योर लेसन टू एंश्योर दैट यू फिल द पीरियड विद लर्निंग एक्टिविटीज. तो इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज ओवर प्लान. मतलब you should have a best planning of your lecture. Come to the classroom prepared. Show confidence in your teaching. आपकी जो voice का level है, loudness है, that shows that you are confident. Learn students names as quickly as possible. अब ये तो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. कई लोग क्या करेंगे कि अटेंडेंस लेंगे और उनको नाम याद दे से होते हैं, पर इसके लिए यदि कोशिश कर लें, इफ यू कॉल ए पर्सन सेकंड डे विद हिज नेम,
तो सारी क्लास अलर्ट हो जाएगी क्योंकि ये तो टीचर बहुत तेज है और ये तो नाम से नाम याद कर लिए इसने। विदिटनेस, तो क्या आप बता पाएंगे कि व्हाट इज विदिटनेस? सो टीचर्स, विदिटनेस refers to teachers awareness of what is going on in the class। ये मैंने जवाब भी दे दिया है और इसके बाद आप बता पाएंगे कि what do you mean by विदिटनेस? Anybody? What is विदिटनेस? क्या आपने ये वर्ड सुना कभी? Sir, Vidicness means either students are aware of the topic which is teacher is going to learn and they are learning about that topic or not. No. It is here this is little difference. I mean to say विदिटनेस means suppose you are going to write on the board। जैसे ही आप बोर्ड पर पहुंचते हो पीछे से लड़का शरारत करता है और आपको कैसे पता लगे? You must be quite alert that from where the mischief has come, who is the mischief mongers? That is called विदिटनेस। What is going on in the class? When handling misbehavior, make sure that all students learn what is unacceptable about the behavior। इसके साथ ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि what is not acceptable in your class। Getting angry or stressed does not reduce future misbehavior। तो इसमें क्या होता है, कई टीचर्स जो हैं वो गुस्सा खा जाते हैं या काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इससे मिसबिहेवियर खत्म नहीं होता, बट वी हैव टू मैनेज। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लासरूम मैनेजमेंट। डील विद मिसबिहेवियर विदाउट डिस्टर्बिंग द लर्निंग एक्टिविटी। मान लीजिए स्टूडेंट को आपको बाहर निकालना पड़ता है किसी कारण और वो अड़े जाता है, कहता मैं नहीं जाता, तो फिर क्या करोगे? बोले अच्छा तू बैठा है। बाद में क्या करो कि जब आप क्लास से निकलने लगे हो तो उसको बोलो कि आइए मेरे साथ जरा, तो उसको आपने कमरे में ले जाके उसको तरीके से समझाइए। दैट इज अ वे। यदि क्लास में उसके साथ हम डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी ए कॉस्ट एंड विच विल नॉट बी मैनेजेबल। ऑफ टास्क बिहेवियर्स, 99% of off task behaviors take one of the several forms। कौन सी? टेकिंग आउट ऑफ टर्न। तो उसमें क्या होता है कि आपने किसी से पूछा, दूसरा स्टूडेंट बिना पूछे ही बताना शुरू कर दिया उसने। टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। क्लाउनिंग, कोई अलग अलग तरीके से केस बनाने लग जाएगा, कोई शरारत करेगा। डे ड्रीमिंग, कोई इस तरीके से बैठा है कि जैसे पता नहीं क्या सोच रहा है। दैट इज इन द स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग। मूविंग अबाउट विदाउट परमिशन। कई बार आपने क्लास में देखा होगा कि एक डेस्क से उठकर एक स्टूडेंट दूसरे डेस्क पे पहुंच जाता है, पीछे से निकल के बीच में आ जाता है, बीच से निकल के पीछे चले जाता है विदाउट हैविंग एनी परमिशन। एंड देयर कैन बी एंटी सोशल डेंजरस बिहेवियर्स मेक अप द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टाइम एंड स्टूडेंट्स स्पेंड ऑफ टास्क। तो उससे होता क्या है कि स्टूडेंट्स मतलब इतना जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं तो कि क्लास में जैसे हंगामा हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एंटी सोशल एंड डेंजरस बिहेवियर्स। बॉडी लैंग्वेज एंड प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहले है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट इज द बेसिक टू क्लासरूम मैनेजमेंट। फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, फिजिकल proximity of students and the way you carry yourself with and communicate that you are in calm control of the class and mean to be taken very seriously। तो हमने क्या करना है कि क्लास को किसी तरीके से कंट्रोल करना। तो इसमें ये भी देखना है कि what we are communicating। इन कम्युनिकेशन में जो बेसिक फंडामेंटल क्या है? It is not important what you say, it is very much important that how you say। So that we have to be very careful। किसी स्टूडेंट को हमने किसी तरीके को पॉइंट आउट भी करना है तो इस तरीके से पॉइंट आउट किया जाए कि वो ऑफेंडेड महसूस ना करे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कहते हैं ना खून गर्म होता है तो फिर
झगड़े की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बी फ्री टू रोम, तो क्लास में घूमिए, एक जगह पर मत खड़े होके, कभी किसी साइड में, कभी किसी साइड में, कभी सेकंड रो में, कभी थर्ड रो में, रोम ओवर। अवॉइड टर्निंग बैक टू क्लास, तो हम क्या करते हैं कि क्लास की ओर बैक करके बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते हैं और बोर्ड की ओर मुंह करके बोलना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, वो जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे विल हैव द चांस टू मेक डिसरप्शंस। Cooperation through communication. Verbalize description of behaviors and never value judgment about individuals. किसी के बारे में एक जजमेंट दे देना कि तू तो है ही ऐसा, या तू निकम्मा है, या कुछ कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पर वी हैव टू अवॉइड, वी हैव टू बी वेरी कंट्रोल ओवर वर्ड्स। वर्बलाइज फीलिंग्स बट रिमेन इन कंट्रोल, उनको अपनी फीलिंग्स बता दो कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद सच ऑफ बिहेवियर, बट उनको डायरेक्ट नहीं करना। डू नॉट यूज सार्कास्म। व्हाट इज सार्कास्म? एनीबॉडी? व्हाट इज सार्कास्म? यू मस्ट बी नोइंग। आपने ये वर्ड सुना तो होगा। आर यू हियरिंग मी? Yes, yes. It means that not to pass such remarks which can hurt the student. जिसको बोलते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स, किसी की निंदा करना। क्योंकि जब हम पब्लिकली किसी की निंदा कर देते हैं या उसकी बेइज्जती कर देते हैं तो क्या होता है, वो फिर वो रिवेंज में आ जाता है, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डू नॉट प्लेस लेबल्स, गुड और बैड। डू नॉट गेट स्टूडेंट्स हुक्ड ऑन प्रेज, और किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया उसकी इतनी प्रेज ना करो कि बाकियों को जेलसी शुरू हो जाए। प्रेज द वर्क एंड बिहेवियर, नॉट द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। उनके काम की और उनके बिहेवियर की प्रेज कर दो, पर किसी स्टूडेंट की प्रेज डायरेक्टली ऐसे नहीं करना। स्पीक ओनली टू स्टूडेंट्स व्हेन दे आर रेडी टू लिसन, बोलिए तब व्हेन दे आर रेडी टू लिसन। ए गुड बिगिनिंग, कैसे? टेक एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट डेज। अब जैसे बिगिनिंग टीचर्स नई क्लास आती है, शुरू हो, उसमें क्या कि पहले दिन में कॉन्फिडेंस जाके आज स्टेशन हर तरीके से कंट्रोल करनी है। तो टेक एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट डेज ऑफ द क्लास टू सेट द स्टेज फॉर कोऑपरेशन। उनको अपनी जो चीजें अच्छी नहीं लगती उनको बता दो। व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू डोंट एक्सपेक्ट, what you don't like, all these things must be told to students, resulting, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है that will last long. Establish an environment in which achieving specific learning goals takes priority over other concerns. तो हमें ये देखना है कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि हमारी जो लर्निंग गोल्स हैं उसको अचीव करना, दैट इज आवर मेन एम। It is much easier to establish this environment from beginning rather than the later. बाद में तो बिगड़ेगा, बिगड़े को ठीक करने में ज़्यादा समय, ज़्यादा एफर्ट लगेगा और उसकी सक्सेस रेट का कई बार श्योरिटी नहीं होती। सो बेटर टू डू एट द अर्लीस्ट। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कहते हैं रूल तो बना दिए, पर रूल ऐसे होने चाहिए, दोज मस्ट बी रीजनेबल एंड नेसेसरी, जो कि रिक्वायर्ड है। रूल्स मस्ट बी मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। कई बार हम कहते हैं रूल तो बना दिया, इसका पर्पस क्या है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। रूल्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इंस्ट्रक्शनल गोल्स, तो रूल्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे इंस्ट्रक्शनल गोल्स के साथ मैच करें। क्लासरूम रूल्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द इंस्टीट्यूशनल रूल्स, तो हमें इंस्टीट्यूशनल का भी एक मिशन, एक विजन होता है, दैट हैज टू बी मैच्ड। तो ये सारी जो चीजें हमें ख्याल करें। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ये क्या होती है? क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पहले से ही बता दो कि असाइनमेंट कितनी, कौन सी डेट को ली जाएगी, कितने दिन में सबमिट करनी है, ना करने पे क्या होगा, कितने मार्क्स का डिडक्शन करूंगा, इंटरनल असेसमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी बातें उसको क्लियर कर दो, डिस्क्लोज कर दो। क्योंकि स्टूडेंट तो बाद में कहेगा कि मुझे पता नहीं था,
रेफर बैक टू द गाइडलाइंस थ्रू आउट द टर्म। तो ये जो गाइडलाइंस है थ्रू आउट द टर्म उनको रेफर करवाते रहो कि मैंने ये बताया हुआ। बेसिक कोर्स आउटलाइन, तो कोर्स की आउटलाइन शुरू में बता दो कि ये हमारा कोर्स होगा, ये टॉपिक्स होंगे, हम ये टॉपिक पहले पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, उसका क्या लिंकेज होगा, उसकी क्या एप्लीकेशन होगी, उसके साथ में कोई फील्ड विजिट अटैच्ड है, किसी के साथ लेबोरेटरी अटैच्ड है, तो वो सारी चीज़ हम पहले से ही एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेडिंग प्रोसीजर, ग्रेडिंग कैसे होगी? इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग मिस्ड वर्क, यदि काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा क्रेडिट कैसे मिल सकते हैं? होमवर्क का क्या प्रोसीजर है? तो ये नहीं कि एक ने कर लिया बाकी कॉपी करके ले आए, तो आप देने वाले भी इस तरीके के होंगे कि वो कॉपी ना कर सकें, या ग्रुप वर्क दिया है तो उसमें पर्टिकुलर असाइनमेंट और उस पर चेक्स एंड बट्स रखेंगे कि इसकी रेटिंग कैसे करनी। अटेंडेंस पॉलिसीज should be consistent with institute policy. Suppose the institute says no late comer, जब कोई लेट आता है तो गेट से एंट्री ही नहीं करने दिया जाता, तो उससे क्या होगा? उसका पीरियड मिस होगा, he will lag behind. So you have to tell in advance, disclose करना पड़ेगा कि by all means you have to be here 5 minutes earlier to institution time. Or same is the case with the classroom. Other class rules and policies and procedures depending upon the type of the program or class. Room or lab arrangement. Make sure that students can see and hear clearly. मान लीजिए कि आप कोई डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होगा कि वो एक सेमी सर्कल बनाएंगे या एक सर्कल टाइप बनाएंगे और बीच में जो टीचर जो है डेमोस्ट्रेट कर रहा है, इफ एवरीबॉडी इज एबल टू सी, या फ्रंट वाले देख पाएंगे और पिछले वाले शार्प करते रहेंगे, तो दैट इज अनदर चांस टू क्रिएट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो मेक अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट एवरीबॉडी कैन सी क्लियरली। अरेंजमेंट इज डिटरमिन्ड बाय लर्निंग एक्टिविटी, लेक्चर क्लास है, क्लास डिस्कशन है, स्मॉल ग्रुप है, ट्यूटोरियल क्लास है, कैसी क्लास है, ये डिपेंड करेगा अरेंजमेंट के लिए। अलाउ रूम फॉर इजी एक्सेस एंड प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, तो हमारे जो डेस्क इस तरीके से सेट होने चाहिए कि यदि स्टूडेंट पे यदि किसी कमरे के दो डोर्स हैं तो पीछे से भी एक्सेस है, फ्रंट से भी। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से ही एंट्री है और यदि कोई एक स्टूडेंट एंटर कर गया उस डेस्क लाइन में तो वो बाहर ही ना निकल पाए। सो अलाउ रूम फॉर इजी एक्सेस एंड प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। थिंक थ्रू class procedures and learning activities and arrange the room in best possible। तो हमें यदि वो डिसअरेंज्ड है तो उनको अरेंज करना चाहिए। Dealing with misbehavior, I don't know whether you are facing any misbehavior problem, but at certain places we observed there have been a lot of misbehaviors and unable to control because there was some political interference or there are some lobbies. So, but we saw how these can be managed. किसी भी मिसबिहेवियर के, किसी भी बिहेवियर के कुछ फंक्शन होते हैं। एक तो होता है अटेंशन, दूसरा होता है पावर, तीसरा होता है रिवेंज, चौथा होता है अवॉइडेंस एंड एस्केप। तो अटेंशन का मतलब क्या है कि यदि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट ही ऐसा है या टीचर की आवाज़ ही इतनी धीमी है कि उसको सुनाई नहीं देता, तो स्टूडेंट्स की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और दे विल नॉट पे द प्रॉपर अटेंशन, रिजल्टिंग दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। फ्रॉम दिस द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। देन पावर, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द बैकग्राउंड, their parents or their relatives are having some power or powerful seats, so they will show their might. They will behave in such a fashion that more extrovert, which is not required even. Then revenge, किसी स्टूडेंट को कभी कुछ कह दिया, वो इस तरीके से बैठा है कि मैं इस टीचर को भगा के छोड़ूंगा। रिवेंज, बदला लेने की उसके मन में आ जाती, तो वो अपने साथ एक ग्रुप फॉर्म कर लेता। तो उससे कैसे बचा जाए? अवॉइडेंस, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अवॉइड करते हैं कि उनको पढ़ना ही नहीं है, एस्केप करेंगे। दे वांट टू बी लेफ्ट, वो कहते हैं ना हमसे क्वेश्चन पूछो, तो आपने जो पढ़ाना पढ़ा दो, हम बैठे।
दे आर पैसिव, डिसइंटरेस्ट और फीलिंग्स ऑफ इनएडुकेसी, या तो उनको पता नहीं, हमें समझ नहीं पाते कि क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा, या उनको समझ नहीं आ रही, या वो उनको जो प्रॉब्लम दे आर नॉट ऊजिंग आउट। रिजल्ट क्या होता है कि दैट विल लीड टू सर्टन टाइप ऑफ मिसबिहेवियर लेटर ऑन। So many misbehaviors exhibited by students are responses to the behavior exhibited by the teacher. कई बार क्या होता है कि टीचर के कई एक्शन, कई स्टाइल्स स्टूडेंट्स को भाते नहीं है, पसंद नहीं आते, तो फिर वो क्या होता है कि that will create problems among the minds of the students and ultimately misbehavior will start. Do not tolerate undesirable behaviors no matter what the excuse. तो शुरू से ही उनको स्नब करना जरूरी है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका बहाना कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ पर्सन एग्जिबिट्स अ बिहेवियर इज नो रीजन टू टॉलरेट। तो ये सोचना कि भी वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये उसका रीजन नहीं है। हाँ, हमें पता जरूर करना है कि व्हाई ही इज डूइंग दिस। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर विल हेल्प इन नोइंग हाउ टू डील विद। जब हम उसका फंक्शन को पता कर लेंगे कि किसके कारण ये काम ये करता है ऐसे, तो उससे हमें मैनेज करने का तरीका मिल जाएगा। डीलिंग विद ऑफ टास्क बिहेवियर्स, रिमेन फोकस्ड एंड काम। हमें शांत स्वभाव से और फोकस रहना कि हमारा फोकस ना बिगड़े। ऑर्गेनाइज थॉट्स, आइदर रिस्पॉन्ड डिसिसिवली और इग्नोर इट एट ऑल। या तो उसका जवाब दो बड़े तरीके से, नहीं तो इग्नोर कर दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ टास्क बिहेवियर्स एंड ऑफ टास्क बिहेवियर पैटर्न्स। तो क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं उसके अलावा भी वो शरारतें करते हैं, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसको पता लग जाता है हमें कि हमारी पढ़ाई के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है या इनके मन में कुछ और है। कंट्रोल द टाइम एंड प्लेस फॉर डीलिंग विद ऑफ टास्क बिहेवियर। उसके लिए हमें टाइम और प्लेस ये डिसाइड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि क्लास में शुरू हो जाए, उससे क्या होगा कि यूर वन दे आर 60 और 70, देयर विल बी मॉब मेंटेलिटी। मॉब मेंटेलिटी में क्या होता है कि राइट थिंकिंग नहीं आती, तो उससे क्या होता है कि वो झगड़े की शेप ले लेता है। देयर कैन बी कंप्लेंट्स बट नो सोल्यूशन। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद डिग्निफाइड वेज टू टर्मिनेट ऑफ टास्क बिहेवियर। तो उनसे आप इस तरीके से पेश आएंगे कि उनकी शान में हम कोई खराबी नहीं कर रहे, वी आर ओनली डिस्कसिंग। Attention seeking students prefer being punished और क्रिटिसाइज टू बीइंग इग्नोर्ड। तो क्या होता है कि देयर आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको ये होता है कि उल्टी सी बात करो कि टीचर हमें डांटे, उनको मजा आता है, और जब लोग उस पर हंसते हैं उनको वो बहुत खुश होते हैं, तो उनको बोलते हैं अटेंशन सीकर स्टूडेंट्स। गिव अटेंशन टू द स्टूडेंट्स व्हेन ही और शी इज ऑन द टास्क एंड प्रॉपर। तो जब कोई स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, मान लीजिए आपने ट्यूटोरियल में कोई दे दिया या आपने क्लास में कुछ और छोटी मोटी असाइनमेंट दे दी, तो आप उनको वॉच करिएगा और देखिए कि दे आर कोऑपरेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग और दे आर डिसएग्रीइंग टू इट। कैच देम बीइंग गुड। तो कई बार क्या होता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, तो कैच देम बीइंग गुड, तो उस समय उनको अप्लॉज दीजिए और उनको पता भी लग जाए कि मुझे ठीक काम करते हुए टीचर ने देख लिया। तो ऐसे जो चांसेस है आते तो कम है, पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड दिस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द बिगिनिंग टीचर्स। पावर सीकिंग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू प्रोवोक टीचर्स इनटू स्ट्रगल ऑफ विल्स। तो क्या करते हैं जो पावर सीकिंग स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि ऐसी बातें करेंगे जिससे कि टीचर को गुस्सा आए या वो माइंड से परटर्ब हो। उससे क्या होगा कि वो स्ट्रगल और कंफ्लिक्ट में आने की कोशिश करेंगे। इन मोस्ट केसेस टीचर शुड डायरेक्ट अटेंशन टू अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास। जब वो शरारत कर रहा है तो उनकी ओर ध्यान ना देके बाकी स्टूडेंट्स की ओर ध्यान दे, सो दैट, क्योंकि उसने अपनी एक्टिविटी तो छोड़नी नहीं है, उसने अपने जो टीचिंग जो उस दिन का सेशन का जो वो एम बना के आया वो उसने फुलफिल करना है। तो यदि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लग जाएगा या उसको सॉल्व करेगा तो उसकी अपनी इनपुट कम हो जाएगी। So there are different type of behaviors. That is rambling. Rambling means wandering around and off the subject. तो उसका तरीका क्या है? Possible responses क्या आएंगे? Refocus attention by restarting relevant part.
जब वो स्टूडेंट्स एस्ट्रे हो गए तो हमें क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सो दैट दे आर इन ट्यून विद यू. डायरेक्ट क्वेश्चंस टू ग्रुप दैट इज बैक ऑन द सब्जेक्ट. तो फिर उनको वापस अपने टॉपिक पे हम वापस लाएंगे. आस्क हाउ टॉपिक रिलेट्स टू करंट टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. तो ये जो टॉपिक है आपस में इनका रिलेशन क्या है. यूज ऑडियो विजुअल एड्स, बिगिन टू राइट ऑन द बोर्ड, टर्न ऑन एचपी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल डिफरेंट हो जाएगा, देयर अटेंशन विल बी वेरिड और वो आपकी ओर ध्यान देंगे. से तो आपको क्या कहना है, वुड यू समराइज योर मेन पॉइंट्स प्लीज. तो क्या होगा कि उनसे पूछे कि आप ये कहना चाहते हैं, तो उनको बोले कि समरी में बताइए. तो उससे क्या होगा कि वो अलर्ट हो जाएंगे एंड दे विल लिसन टू यू. दूसरा बिहेवियर हम क्या देखते हैं स्टूडेंट का, शाइनेस एंड साइलेंस. वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो फिर क्या करो यार, चुपचाप बैठे हैं. आप सोचेंगे मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना नॉड है ना स्माइल है, कुछ नहीं. और यदि दो चार तरीके, दो कारण हो सकते हैं. एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा, या दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, देयर कैन बी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. तो इसका क्या करेंगे, चेंज टीचिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन टू इंडिविजुअल रिटन एक्सरसाइजेज और वीडियो टेप. तो अपना जो टीचिंग स्टाइल है वो चेंज कर रहे. दे आर नॉट ओनली स्टेरिंग एट यू एंड यू आर ओनली स्पीकिंग. गिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एनी कंट्रीब्यूशन. यदि कोई भी स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्ड करता है, उसको प्रॉपर अप्लॉज दो, उसको रीइंफोर्स करो कि बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद में इसका ये अल्टरनेटिव. इन्वॉल्व बाय डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चंस. उनकी इन्वॉल्वमेंट करिएगा, इन्वॉल्व देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस. मेक आई कांटेक्ट. ये नहीं है कि आप नीचे देख रहे हो और मुंह से बोल रहे हो. अपॉइंट टू बी स्मॉल ग्रुप लीडर. तो क्या करो कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि शरारती बच्चे ज्यादा हैं, तो एक ग्रुप बना के उसमें से एक को लीडर बना दो. जब उसको लीडर बना दोगे तो वो आप शरारत नहीं करेगा, दूसरों को कंट्रोल करने में लग जाएगा, और जो शरारत करेगा उसकी कंप्लेंट बताएगा टीचर को. दैट इज अनदर स्ट्रेटेजी. बिहेवियर टॉकेटिव है. तो इसमें क्या होता है कि बच्चे बात ही करते जा रहे हैं, और उसमें क्या है कि जैसे उनको सब कुछ पता है. एक्नॉलेज कमेंट्स मेड. तो जो वो कमेंट देते हैं उनको एक्नॉलेज करके पता लग गया हमें. गिव लिमिटेड टाइम टू एक्सप्रेस व्यू पॉइंट और फीलिंग्स एंड देन मूव ऑन. उनको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और उसके साथ में अपना जो टॉपिक है उसको आगे चलाएंगे. मेक आई कॉन्टैक्ट विद अनदर पार्टिसिपेंट. कई बार क्या होता है कि वो स्टूडेंट हटता नहीं है, तो फिर क्या करो, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ तो आई कॉन्टैक्ट बना लिया और उसके पास मूव करना शुरू कर दिया. वो फिर अपनी जो शरारत कर रहा है उससे हटेगा. गिव द पर्सन इंडिविजुअल अटेंशन ड्यूरिंग द ब्रेक्स. तो उस स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी कब, ड्यूरिंग द ब्रेक्स और ऑफ द ऑफिस टाइम. तो इसमें हमने क्या कहना है, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट. जब किसी ने कोई ऐसा रिमार्क दे दिया तो उसको बोले दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ लेट्स सी व्हाट अदर पीपल थिंक. चाहे उसने गलत कहा या कुछ भी कहा, फिर उसका व्यू जो उसके ऊपर कमेंट दूसरों का लीजिए. तो जब पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है तो वो अपने आप ये आदत छोड़े. शार्प शूटिंग. शार्प शूटिंग क्या होती है, ट्राइंग टू शूट यू डाउन और ट्रिप यू अप. मतलब आपको वो बोलने नहीं देगा और आपको आगे टॉपिक चलाने नहीं देगा. तो उसके लिए क्या करना है, एडमिट दैट यू डू नॉट नो द आंसर. कई बार क्या होता है कि ऐसे जो क्वेश्चन टेढ़े कर देते हैं जिसका जवाब पॉसिबल नहीं होता, तो उसका एक ही तरीका है, उसको बोलो कि भाई ये मुझे आता नहीं है, आई विल फाइंड इट प्रॉपर आंसर एंड रिप्लाई. तो उसके बाद में क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप को दे दो कि भाई आप इसका सोल्यूशन बताओ, या उसी को ही बोल दो भाई मुझे तो आता नहीं, तुम बताओ इसका क्या सोल्यूशन. सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी टैकल सच टाइप ऑफ mischievous students. Acknowledge that this is a joint learning experience. तो उनको acknowledge कर दो कि भाई देखिए तेरे लिए भी ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी, हम दोनों मिलके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और डिस्कस करेंगे. और इग्नोर दिस बिहेवियर.
और इस बिहेवियर को इग्नोर कर दो, क्योंकि नहीं तो क्योंकि उसका एम तो कुछ और है और आपने डिफेंसिव में आ जाए, नॉट ऑफेंसिव। तो देर इज सम टाइप ऑफ बिहेवियर दैट इज आर्गुइंग, डिसएग्रीइंग विद एवरीथिंग, जो भी आप कहोगे उससे डिसएग्री करना, मेकिंग पर्सनल अटैक्स। तो उस समय क्या करना, रीडायरेक्ट क्वेश्चन टू ए ग्रुप और सपोर्टिव इंडिविजुअल्स। तो क्या होता है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट टीचर्स को हमेशा लाइक करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली, एंड देयर आर अदर्स हु आर लेग पुलर्स। तो क्या करो कि वो जो क्वेश्चन उससे किसी ने किया है उसको किसी ग्रुप को दे दो या सपोर्टिव इंडिविजुअल्स को दे दो। तो उससे क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो है वो सोचने लग जाएगा कि क्या उसने क्वेश्चन ठीक किया, और ही और शी विल फाइंड आंसर फ्रॉम द ग्रुप और द सपोर्टिव इंडिविजुअल्स। रिकॉग्नाइज पार्टिसिपेंट्स फीलिंग एंड मूव ऑन। तो उससे क्या होगा कि उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है हमने। एक्नॉलेज पॉजिटिव पॉइंट्स, यदि उसने ठीक कहा है तो उसको एक्नॉलेज करें। से आई अप्रिशिएट योर कमेंट्स बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अदर्स। तो उसने तो कोई कमेंट दे दिया, मेड बी नॉन, उसको अप्रिशिएट कर दिया आपने, वो सेटिस्फाई हो गया, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। अब पूछिए कि भाई आप बाकियों का इसके बारे में क्या व्यू है, तो बाकी इसके फॉर और अगेंस्ट बोलेंगे। इफ इट इज अगेंस्ट तो ही विल कम टू नो कि ही इज मेकिंग मिसचिफ, सो इट लुक्स लाइक वी डिसएग्री। तो जब बाकियों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं आया या उसके अगेंस्ट आया तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे कि भाई वी डिसएग्री विद योर स्टेटमेंट। ओवर्ट हॉस्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है, कई बार एंग्री बिहेवियर आ जाता है, तो उसमें कैसे करना है। हॉस्टिलिटी कैन बी द मास्क फॉर फियर, रीफ्रेम हॉस्टिलिटी एज ए फियर ऑफ डीपर्सनलाइज इट। तो उसमें क्या करता है कि जब वो हॉस्टाइल उसका जो बिहेवियर है उसको अपने डर के कारण वो ऐसा बिहेवियर करता है कि मुझसे कुछ पूछे ना, रिस्पॉन्ड टू फियर नॉट टू हॉस्टिलिटी। तो उसका जो फियर है कि भाई उसको आता नहीं है या कुछ है, तो उसकी हम हेल्प कर रहे हैं। रिमेन काम एंड प्लाइट, तो हमें प्लीजिंग रहना है, काम रहना है और प्लाइट रहना है। कीप योर टेम्पर इन चेक, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनरली वी आर टेंड टू लूज आवर टेम्पर बट वी हैव टू कंट्रोल। डोंट डिसएग्री बट बिल्ड ऑन और अराउंड व्हाट हैज बीन सेड। जो उसने कहा उसी के अराउंड रहिए, उसको स्नब करने की कोई जरूरत नहीं। मूव क्लोजर टू द हॉस्टाइल पर्सन, उसके पास जाइएगा। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, ऑलवेज अलाउ हिम और हर टू स्पीक हर वे टू ग्रेसफुली रिट्रीट फ्रॉम द कन्फ्रंटेशन। उससे अच्छे से उसके पेश आइएगा, उसके सवाल का जवाब दीजिएगा। वो चाहे एरोगेंटली बोल रहा है बट कन्फ्रंटेशन से हमने बचना। तो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज क्या आते हैं, से यू सीम रियली एग्री, तो ऐसे लगता है कि आज गुस्से में हो। डज एनीवन एल्स आल्सो फील दिस वे, सॉलिसिट पीयर प्रेशर, तो जो पीयर का जो बाकी के स्टूडेंट्स का प्रेशर उसके पास दिलवाओ। अलाउ इंडिविजुअल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस्ड, तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ही और शी मे नॉट बी एबल टू ऑफर सॉल्यूशंस एंड विल समटाइम्स अंडरमाइन हिज और ओन पोजीशन, तो कई बार इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो अंडरमाइन करेगा अपने आप। इग्नोर बिहेवियर, तो उसका बिहेवियर जो है उसको इग्नोर कर दो। टॉक टू हिम और हर प्राइवेटली ड्यूरिंग द ब्रेक। सो एज ए लास्ट रिजॉर्ट प्राइवेटली आस्क द इंडिविजुअल टू लीव द क्लास फॉर द गुड ऑफ द ग्रुप। तो क्या करना है उसको, यदि कोई शरारत से बाज नहीं आता तो उसको बोलिए कि तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी, प्लीज लीव द क्लास। तो वो करना पड़ेगा, तो फिर नहीं तो बाकी क्लास डिस्टर्ब करती है। तो वो लास्ट में है, ना कि फर्स्ट इंस्टेंस। ग्रिपिंग, पॉइंट आउट दैट वी कांट चेंज द पॉलिसी। कई बार वो कहते हैं जी ऐसे करना है, जैसे कि स्टूडेंट्स आमतौर पर अपनी कोई ऐसी डिमांड रख देते हैं कि जी हमारे 4 टेस्ट लो, वो रूल में या पॉलिसी में नहीं है, तो हमें सीधे प्लेनली बता दो कि दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ पॉलिसी। वैलिडेट हिज और हर पॉइंट, उसका पॉइंट देख लीजिए कि वैलिड है कि नहीं। इंडिकेट यू विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद द पार्टिसिपेंट प्राइवेटली, उसको बाद ये भी कह सकते हैं कि आप बाद में आइएगा, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इंडिकेट टाइम प्रेशर, कई बार क्या होता है कि वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जेन्युइन होती है, तो वी कैन से दैट वी विल टेक योर प्रॉब्लम टू द superiors
or the authority to solve this problem. मेन चीज क्या है, सिचुएशन को संभालना. साइड कन्वर्सेशन मे बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट और पर्सनल. तो उसमें क्या होता है, डोंट एम्बेरस टॉकर्स, क्योंकि बोलने से हटेंगे तो नहीं वो, तो उनको एम्बेरस मत करो कि खड़े करके उनको जैसे कहने पंजाबी में लापत कर दी, वो नहीं करना. आस्क देयर ओपिनियन और टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. तो जो उनकी ओपिनियन टॉपिक के बारे में वही डिस्कस करते हैं. आस्क टॉकर्स इफ दे वुड लाइक टू शेयर देयर आइडियाज. यदि वो बात करें तो उनसे उसके प्रति कोई जो क्वेरी है वो पूछ लीजिए कि व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टीचिंग. कैजुअली मूव टुवर्ड्स दोज टॉकिंग. जो बातें कर रहे हैं उनकी ओर थोड़ा सा मूव करिएगा, वो हट जाए. मेक आई कॉन्टेक्ट विद देम. स्टैंडिंग नियर द टॉकर्स आस्किंग द नियर बाई पार्टिसिपेंट ए क्वेश्चन. तो क्या करो, जो टॉक कर रहे हैं उनके पास खड़े हो जाओ और दूसरे से सवाल पूछो किसी और से. तो वो तो साइलेंट हो गए, तो अटेंशन डाइवर्ट करके वी कैन कंट्रोल द क्लास सो दैट न्यू डिस्कशन इज नियर द टॉकर्स. तो क्या होगा कि जो नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी तो टॉकर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो एज ए लास्ट रिजॉर्ट स्टॉप एंड वेट. तो आप चुप कर सकते हैं और कहेंगे मैं वेट करता हूं कि जब आप बातें अपनी बंद नहीं करते जब तक. तो CRM strategies, there are different type of strategies which are available. So we categorize them in major 4 categories, that is type M, then type R, then type P, then type C. तो इसमें है क्या है, जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब है कि जो टीचर्स में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो पूरी तरीके से इनकलकेट हो जाए, कि वो लेसन प्लान पूरा तैयार करके आए, कॉन्फिडेंस से आए, टाइम पे आए, अपनी जो पिच लाउडनेस कम्युनिकेशन पर पूरा उसका कंट्रोल हो. इसको बोलते हैं मेंटेनेंस. इफ द टीचर इज वेल मेंटेन्ड, naturally he or she will be able to control the class well. That is called maintenance. The other is relationship. We must have a good rapport with the students. We should not work in isolation because emotions play a very important role in classroom setting. So what a teacher is, he is good in his or her behavior and he has a good rapport with the students. और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको अपने रिलेशनशिप पे और अपने इंप्रेशन से सॉल्व कर लेता है. तो दैट इज इंक्रीजिंग रिलेशनशिप. द थर्ड इज परसुएशन. मान लीजिए कंफ्लिक्ट आ गई, तो टीचर शुड बी एबल टू परसुएड इन डिफरेंट वेज एंड मीन्स दैट देयर इज नो कंफ्लिक्ट. एंड द फोर्थ वन इज सी, दैट इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन. मान लीजिए कंफ्लिक्ट हो ही गई तो उसको रिजॉल्व कैसे करना, और क्राइसिस मैनेजमेंट. तो ये जो 4 तरीके की जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, इसको हमने ग्रुप किया हुआ. तो इफेक्टिव टीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर. द मेन एम इज दैट टीचर हैज टू बी वेरी मच इफेक्टिव. दे आर मास्टर्स ऑफ देयर मटेरियल. मटेरियल मीन्स देयर सब्जेक्ट. दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड. दे आर एंथुजियास्टिक अबाउट देयर टॉपिक एंड द लेसन. They are warm and approachable but not familiar. जब भी कोई प्रॉब्लम आए, students can approach them. They are alert and watchful. कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले they are watchful and alert that this may not occur. They are very vigilant. They are firm and reasonable, fair and consistent. Consistent मतलब कि आज ही fair नहीं, सदा ही fair रहेंगे. They have clear and well moderated speech. तो उनकी स्पीच पे पूरा कंट्रोल होगा, क्लियर स्पीच होगी, सो दैट द स्टूडेंट्स में ड्रा द क्लियर मीनिंग आउट ऑफ देयर कम्युनिकेशन. क्लास कंट्रोल विदाउट कन्फ्रंटेशन. तो कहते हैं कि क्लास को कंट्रोल करना है विदाउट कन्फ्रंटेशन. द फर्स्ट स्टेप इज एस्टैब्लिश आई कॉन्टेक्ट, मूव अराउंड द रूम एंड इंक्रीज प्रॉक्सिमिटी टू रेस्टलेस स्टूडेंट्स. जो रेस्टलेस स्टूडेंट्स हैं, जो मिस्चिफ कर रहे हैं, उनके पास पहुंचना. सेंड ए साइलेंट सिग्नल. शेक योर हेड with your body posture or style
you can tell it remain silent, don't disturb, give a quiet reminder. पहले नहीं हटते उनको दोबारा रिमाइंड भी करना पड़ेगा. रीडायरेक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, यूज स्टूडेंट्स नेम. तो यदि आपने पहले दिनों में नाम याद कर लिए हुए हैं तो जब आप बाय नेम उसको बुलाओगे और उसके अटेंशन को करोगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगा. बिगिन ए न्यू एक्टिविटी. जब देखा कि चुप नहीं करते तो आप एक नई एक्टिविटी शुरू कर दो. उससे क्या होगा कि द अटेंशन विल बी अगेन कमिंग टू यू. प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जब किसी स्टूडेंट ने ठीक जवाब दिया तो आप उसको रीइंफोर्स करिएगा, एनकरेज करिएगा. उससे क्या होगा कि दे आर विद यू एंड लर्निंग. वेट क्वाइटली अंटिल एवरीवन इज ऑन द टास्क. तो जब किसी को कोई हमने ग्रुप में टास्क दिया हुआ है तो वेट so that everybody is doing completing their task. Ask a directed question. जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है वो पूछिएगा. उससे क्या होगा कि they are also alert कि I may be asked a question, so they are within their framework. 4 key factors to effective classroom management. The physical environment, as you told, classroom climate, rules and procedures, teacher-student relationship. These are the 4 key factors which affect the classroom management. Teacher management styles. अब हम बात करते हैं टीचर्स की. I don't know कि because we have come across number of type of teachers during our this academic career. These can be strict disciplinary. कई टीचर्स आपने देखा होगा जनरली मैथमेटिक्स वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई चीज मानते ही नहीं. मार्क्स कम आ गए और तो उनको बोलो दोबारा टेस्ट लो, कहते हम नहीं लेंगे. पुअर ऑर्गेनाइजर, ये दूसरी कैटेगरी है. तीसरी कैटेगरी क्या है? इनडिफरेंट टीचर्स और कार्पिक क्रिटिक. चौथी कैटेगरी है लेजिस फायर. और 5वीं कैटेगरी और है जो लेजिस्लेटिव. तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी. तो इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? दे आर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट. क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते कोई भी मिस्चीफ, कोई भी डिले, कोई भी इनडिसिप्लिन वो बर्दाश्त नहीं करते. दैट इज द रीजन. इसलिए उनका जो स्टाइल बन जाता है. अथॉरिटेरियन है वो, अपनी बात ही मनवा के छोड़ेंगे, अपनी बात ही करवा के छोड़ेंगे. लो सुपरविजन. और आपने इतना ध्यान रखेंगे कि आप यदि कॉपी नहीं कर सकते, आप मतलब कि हर एक जगह, चाहे उनको यदि आप एग्जामिनेशन ड्यूटी में दे विल बी क्वाइट स्ट्रिक्ट, मार्किंग में क्वाइट स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन में क्वाइट स्ट्रिक्ट. उनका स्टाइल ही ऐसा बन चुका है. तो उससे होता क्या है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिससे हमारी एंजाइटी लेवल जो है बढ़े नहीं. तो ऐसे टीचर के साथ एंजाइटी लेवल जो बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है अल्टीमेटली रिजेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है. रिजेंटमेंट जब आ गई तो प्रॉब्लम शुरू हो गई. देन मोर प्रॉब्लम. तो फिर इस चीज का सोल्यूशन क्या है? रेमेडी क्या है? अडॉप्ट डेमोक्रेटिक स्टाइल. तो उन टीचर्स को अथॉरिटेरियन से डेमोक्रेटिक स्टाइल में थोड़ा सा बदल लें, सो दे विल बी गुड. मैं आपको अपने समय की एक एग्जांपल देता हूँ. आई डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम थापर इंजीनियरिंग कॉलेज. देयर वाज ए वन सब्जेक्ट दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2. तो क्या होता था कि जो मशीन्स का टीचर था वो बहुत स्ट्रिक्ट था. तो इतना स्ट्रिक्ट कि हम उसकी क्लास में मिस्टेक तो बहुत दूर की बात है कि हिल भी नहीं सकते. और ऐसे लगता था कि अब किसकी बारी आई और किसको वो कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसकी बेइज्जती करेगा. तो हम डरे बैठे रहते थे. तो अब उसके जो असाइनमेंट देता था वो यूज्ड टू डू ईच एंड एवरी असाइनमेंट और टाइमली देते भी थे. पर उसका काम क्या था? मार्क्स बहुत कम देना. मतलब कि यदि मैक्सिमम मार्क्स किसी के आए तो 100 में से 58, 59, इससे ज़्यादा किसी के मार्क्स आए नहीं, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है. यदि किसी ने कोई चीप बुक या दूसरी हेल्प बुक से लिख लिया तो उसका 0 दे देना सीधे. उसके अलावा जब एक दिन सब स्टूडेंट्स ने मिलके एक फैसला किया कि इसकी क्लास का कट करें, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यदि एक भी चला गया तो बाकी मारे गए. तो उसने क्या, तो हम सब ने मिलकर क्या किया कि कट लगाएंगे. अब उससे क्या टर्निंग पॉइंट आया? उस टीचर को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि सारे स्टूडेंट ही भाग गए, तो मेरे साथ इतने मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे वो भी नहीं आए.
तो उसने फिर बाद में कुछ स्टूडेंट को बुलाया कि भाई बात क्या है, तो बस बात बता दो। तो फिर लोगों ने एक्सप्लेन किया कि देखिए जी कि सबसे ज़्यादा असाइनमेंट आप ही करते हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत आपके सब्जेक्ट की होती है। पेपर में यदि मार्क्स ले लो, असेसमेंट सबसे कम आप देते हो, और जब पेपर फाइनल होता है उसमें भी मार्क्स कम आते हैं। So why we should give much time or so much attention to your subject? We will go to another subject. So that brought a very good change in that very teacher. He became a different style of person after that incident. उसने लोगों से, स्टूडेंट से बात करनी शुरू कर दी, उनसे पर्सनल बात करनी शुरू कर दी, उनकी डिफिकल्टी की बात करनी शुरू कर दी, और रिजल्ट क्या हुआ कि अगेन he was having a good control over the class. So I don't know whether you are facing such type of problems or not, but these things happen. So the teacher has to adopt a democratic way. Poor organizer. इसका मतलब क्या है? Unable to organize or control the class. Generally होता है। तो उसमें क्या होता है? Interruptions होंगी। Students remain unoccupied. उसका कारण क्या है? कि स्टूडेंट यदि अनऑक्युपाइड है तो वो शरारत करेंगे ही करेंगे। तो रेमेडी क्या है? नीड टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज and prepare your lessons well so that you have a good grip of the class. Indifferent teachers or carpet critic. When unable to control the class, they use aversive language. तो कई बार आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ गुस्सा, आउट ऑफ टेम्परामेंट कोई ऐसी बातें टीचर के मुंह से निकल जाती हैं which will create a lot of problem. Criticize and humiliate students with ridicule language and sarcasm. They overreact to discipline problems. तो उनका क्या है कि डिसिप्लिन के लिए उनको कोई स्पेस नहीं, उन्होंने रिएक्ट करना ही करना। तो इसकी रेमेडी क्या है उन टीचर्स के लिए? रिक्वायर एटीट्यूडनल चेंज। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स स्टूडेंट्स और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एंड कल्टिवेट रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये भी देखें कि आपने तो कह दिया है, स्टूडेंट बीइंग एट द लोअर लेवल वो आपकी बात सुन गया, पर मन में तो रंजिश रखेगा ना, तो ये पता नहीं वो किस टाइप का स्टूडेंट है आगे। तो लेट अस नॉट गो टुवर्ड्स दैट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज। बिफोर वी स्पीक वी मस्ट थिंक। सो इसलिए बोलते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। चौथा टाइप है लेज़र फायर। तो ये क्या है कि जैसे कहते हैं ना मस्ट टीचर, भाई देखिए ये स्टूडेंट बड़े हो गए हैं, ये बच्चे नहीं रहे, इनकी ड्यूटी है अपने आप पे पढ़ेंगे, वो अपने आप को मैनेज करेंगे, हमारा काम है सिर्फ इनको पढ़ाना, बाकी कुछ नहीं। तो कहते हैं कि उनको हमने गाइड नहीं करना, उनको बस मतलब मैनेज करवा दिया, क्लास में पढ़ा दिया। तो उससे क्या होता है? अनरियलिस्टिक व्यूज अबाउट द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल एंड एडोलेसेंट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? द स्टूडेंट्स आर इमेच्योर एंड बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी दे क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो यदि उनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, उनको सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो क्या होगा कि वो अपनी उस हैबिट से परे नहीं होंगे। तो उससे क्या होता है कि जस्ट लीड टू कंफ्यूजन एंड क्योस। तो उसमें क्या होता है कि जो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इसको क्या करें, और टीचर कुछ कहता नहीं है, क्लास में शोर मच रहा है, तो दैट इज नॉट टॉलरेबल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए वो क्या करें कि वो जो इस तरीके के टीचर्स हैं वो अपना थोड़ा सा स्टाइल बदलें, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दैट इट इज देयर मॉरल ड्यूटी टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। So I am coming close to our session. So there are two things: effective teaching and effective classroom management. They are closely related, interdependent. A teacher is very much effective if he is effective in classroom management. What are the positive indicators for this? Teacher has excellent rapport with the class and learners with each other. ये indicator. Learners are motivated and participate readily and actively in different activities. No boredom. मतलब उनको बोर नहीं होने देता, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखता है और मोटिवेट करता है।
task objectives are consistently achieved. तो उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाते हैं. इंक्रीज इन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट एरिया. अब आपने देखा होगा कि जो टीचर अच्छे से क्लास मैनेज करता है उसके सब्जेक्ट को भी स्टूडेंट वो अच्छे से पढ़ते हैं, और जो क्लास मैनेज नहीं कर सकता उसकी क्लास में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा और स्टूडेंट विल नॉट टेक इंटरेस्ट, अल्टीमेटली बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो उसमें क्या होगा कि इंक्रीज इन अचीवमेंट, तो उस क्लास में उस सब्जेक्ट में देयर विल बी अचीवमेंट मोर. सो देयर इज वैरायटी इन ग्रुपिंग्स एंड रूम लेआउट. तो हमें जो है ग्रुप इस तरीके से फॉर्म करना चाहिए कि जिसमें एवरेज, जो कुछ लाइक स्टूडेंट हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ पुअर हैं, तो इस तरीके से ग्रुपिंग करके हम उनको असाइनमेंट दे सकते हैं सो दैट दे मे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड दे कम विद सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स. और रूम लेआउट, और जब उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी इस तरीके का बनाएंगे. तो हम कंक्लूजन कहाँ पे आ गए? इफेक्टिव टीचर्स मैनेज देयर क्लासरूम्स. ठीक है. इनइफेक्टिव टीचर्स डिसिप्लिन देयर क्लास. जो इफेक्टिव टीचर्स हैं दे कैन वेल मैनेज देयर क्लासरूम्स, बट इनइफेक्टिव टीचर्स spend lot of time in disciplining their classrooms. Effective teachers have minimum of students misbehavior problems to handle. जो effective teachers हैं उनके पास ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम या रेयर आते हैं. Ineffective teachers are constantly fighting misbehavior problems. एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, तो वो उसी को सॉल्व करने में lot of time spend कर रहे हैं. Effective teaching and learning cannot take place in poorly managed classrooms. So this is the crux. So we have to think that for effective teaching, effective classroom management is utmost necessary. Effective teachers make effective use of classroom management strategies. Those different strategies we adopt, so they are good in adopting those various strategies and they are successful. So to conclude, effective classroom management is not only but creation of an orderly classroom and a reduction of misbehavior. कहते ये इतना नहीं है कि creation of orderly classroom and reduction of behavior, but it is creation of learning environment and increase of appropriate behavior. So our focus is toward creation of learning environment and increase of appropriate behavior. अब मेरे